محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ مرکزی حکومت کی جانب سے بینکوں کو خواندگی کے خلاف 16 اور 17 دسمبر کو ملازمین کی ہڑتال کا اعلان۔ غربا کی فلاح کے لیے سی ایم کے سی آر کی جانب سے فراہم کی جانے والی فلاحی اسکیمات کی ملک کی کسی بھی ریاست میں نظر نہیں۔ پی یو سی کمیٹی چیئرمین فارمر ایم ایل اے جیون ریڈی ان سے مختلف منڈلز کی عوام نے ملاقات کرتے ہوئے کیا اظہار خیال۔ متحدہ ضلع ایم ایل سی کے کویتا کا ایک اور کارنامہ، دبئی میں زیر علاج سائی کمار کو واپس لایا اپنے آبائی مقام۔ سابق ایم پی نظام آباد و پی سی سی پرچار کمیٹی صدر مدھو گوڈ یاشکی کی یوم پیدائش کا ضلع بھر میں جوش و خروش کے ساتھ انعقاد میں مختلف فلاحی و سماجی کام دیے گئے انجام۔ خانگی اسکولز میں منمانی فیس وصولی و قانون کی خلاف ورزی پر مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر افسر بیگ کی ڈی ای او سے ملاقات۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دبئی میں زیر علاج طبی امداد حاصل کرنے والے سائی کمار کو ایم ایل سی کے کویتا نے اپنے ذاتی خرچ سے ان کے آبائی مقام پر پہنچا کر پھر ایک مرتبہ ہمدردی کی پیش کی مثال۔ متحدہ ضلع نظام آباد ایم ایل سی کے کویتا کی ہمدردی کی جیتی جاگتی مثال کچھ اس طرح سے۔ ضلع کے جکران پلی منڈل سکندرپور دیہات سے تعلق رکھنے والے سائی کمار روزگار کی خاطر 4 سال قبل دبئی کا رخ کیا اور وہاں پر موجود کمیٹی میں خدمات انجام دینے کے دوران ٹی بی شوگر میں مبتلا ہونے کے بعد سرکاری ہاسپٹل میں شریک ہو کر طبی امداد حاصل کرنے کی دوست احباب کے ذریعے حاصل کردہ اطلاع پر ان کے افراد خاندان نے آر ٹی سی چیئرمین فور رورل ایم ایل اے بارجیڈی گوردھن کے علم میں لانے پر انہوں نے دلچسپی لیتے ہوئے فوری طور پر اس واقعے کو ایم ایل سی کے کویتا کے علم میں لانے کی بنا پر ایم ایل سی کے کویتا نے فلفور دلچسپی لیتے ہوئے ہاسپٹل میں زیر علاج سائی کمار کو ذاتی خرچ سے ان کے آبائی مقام پر پہنچایا۔ وہ ان کے کمپنی کی جانب سے ملنے والے بینیفٹ کو دلانے میں اہم ترین کردار ادا کیا، جس پر سائی کمار کے ارکان خاندان نے ایم ایل سی کے کویتا کا دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر کیا۔ حکومت سرکاری زمین کا تحفظ کرے، لینڈ گرابرز کے خلاف پی ڈی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائے۔ کانگریس قائد سید خیسر انہوں نے ضلع کلکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے دی تحریری یادداشت۔ آج سابقہ کوآپشن ممبر و کانگریس قائد سید خیسر نے ضلع کلکٹر نارائن ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریری یادداشت پیش کرتے ہوئے ان سے مطالبہ کیا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر غیر مجاز قبضے جاری ہے، جس کے خلاف سی بی آئی جانچ کرتے ہوئے پی ڈی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ اسی طرح لینڈ گرابرز کی جانب سے سرکاری پہاڑ جنگلاتی زمین کو بلاسٹنگ کرتے ہوئے نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس سے ماحولیات توازن بھی خراب ہو رہا ہے اور انہی لینڈ گرابرز کی وجہ سے آج سرکاری اسکولز و ہاسٹل کی تعمیر کے لیے بھی شہر میں جگہ نہ ہونے کا انہوں نے اظہار خیال کیا۔ شہر نظام آباد کے اندر ہندوستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کا کام چل رہا ہے۔ گورنمنٹ لینڈز پر ناجائز قبضے ہو رہے ہیں، تالاب کی زمینیں، شکم کی زمینیں، آپ کے ماؤنٹینز کے زمینیں، پہاڑوں کے زمینیں، یہ تمام زمینوں کو بولتے سو انکروچ کر کے بیچ دیا جا رہا ہے۔ تو آج نظام آباد کے تمام زمینوں پر قبضہ کر کے یہ کروڑ پتی بن رہے ہیں۔ میں آج کلکٹر صاحب سے نمائندگی کیا اور خاص طور سے بات کیا کہ جو بھی ملوث اس کے پی ڈی ایکٹ سی بی آئی انکوائری ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے دیش کا اساتذہ بیچ، یہ پولیٹیکل لیڈرز جو با اختیارات ہے، جب ملک کا اساتذہ کو بیچا جاتا ہے تو دیش کی غدار کہا جاتا ہے ان کو۔ دیش دروہی کا کیس ان پہ لگایا جائے، پی ڈی ایکٹ لگایا جائے ساتھ ساتھ اس کے۔
नंदीपेट मंडल नड़कुड़ा देहात से वाबस्ता मुकामी अवाम पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में मुलाकात करते हुए मुताल्लिका मसाइल के हल के लिए की नुमाइंदगी। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में नंदीपेट मंडल नड़कुड़ा देहात से वाबस्ता मुकामी अवाम ने मुलाकात करते हुए इनसे मुताल्लिका मसाइल से वाकिफ करवाने की बिना पर पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दिलचस्पी लेते हुए फौरी तौर पर हल करने का तयक़ुन दिया। बातज़ा इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम के लिए CMRF कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम व दीगर स्कीमात के जरिए फायदा पहुंचाने का सहरा CM KCR के सर जाने का इजहार किया। हैदराबाद के JRS कन्वेंशन हॉल में मुनक़िदा साबिक़ अंजाहनी गवर्नर कोनी जेटी रोशैया के ताज़ियती इजलास में निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत कर पेश की खिराज क़दर। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने हैदराबाद के JRC कन्वेंशन हॉल में मुनक़िदा साबिक़ अंजाहनी गवर्नर कोनी जेटी रोशैया की ताज़ियती इजलास में शिरकत करते हुए भरपूर तरीके से खिराज क़दर पेश करते हुए साबिक़ गवर्नर व चीफ मिनिस्टर की हैसियत से फ़राहम करदा बेहतरीन खिदमात के बाइस अवाम इन्हें ताहयात तक याद रखने का इजहार किया व इनकी जानिब से फ़राहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की बालकोंडा मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी के हाथों तहसीलदार दफ्तर में 7 मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले 69 मुस्तहिक़ीन में फ़राहमी अमल में लाई। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स की तहसीलदार दफ्तर में 7 मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तिफ़ादा कुननगान में फ़राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर MPP लावण्या लिंगागौड़, सरपंच सुनीता, तहसीलदार प्रवीण कुमार व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गरीब और माली एतबार से कमजोर अफराद के खानदान में मौजूद लड़कियों की शादी के लिए वालिदैन पर एक बोझ तस्वुर की जाती है, जिनकी शादी के लिए सरप्रस्त दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुआ करते हैं। इन अफराद की मजबूरी को महसूस करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को अमल में लाते हुए गरीब व नादर लड़कियों की शादी को आसान बनाने की गर्ज से 1,01,16 रुपए देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में हल्के समन्वय कमेटी के मेंबर दासरी वेंकटेश, सरपंच नवमुला मोहन, मंथन चिन्नैया, कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद फयाज अली, नायब सरपंच शेख वहाब, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन नागभूषणम, सैयद रियाज अली, शेख रहमुद्दीन व दीगर ने शिरकत की। స్వతహాగా అందరికీ అర్హులైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కులని మరి స్వతహాగా మేమే వెళ్ళి మరి సంతకాలు పెట్టించడం కానీ మంత్రి సభ దగ్గర మరి ఎవరి దగ్గర కూడా రూపాయి లంచం తీసుకోకుండా స్వతహాగా నేరుగా వారి ఖాతాల్లోకి జమ చేయడం అనేది చాలా ఆనందం। बैंक्स को खानगी आने के खिलाफ सरकारी बैंक मुलाजमीन व तंजीमों की जानिब से 16 और 17 दिसंबर को बंद का किया ऐलान। सरकारी बैंक को खानगी आने के मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ 16 और 17 दिसंबर को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन व दीगर बैंक यूनियन की जानिब से बंद का ऐलान किया गया और सरकारी बैंक को खानगी आने से होने वाले नुकसान से मुल्क व बैंक मुलाजमीन को बचाने का इन्होंने मुतालबा किया। इसी तरह आज भी तमाम सरकारी बैंक में मुलाजमीन ने अपनी मुलाजमीन के औकात में बैचेस पहनते हुए अपने एहतजाज से अवाम को वाकिफ करवाया। इसी तरह मुलाजमीन ने मरकजी हुकूमत की जानिब से इस कानून को मनसूख करने तक मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज जारी रखने का किया। जमीयतुल माहिन शाख बिचकुंदा कमेटी की तश्कील नो बहैसियत सदर हाफिज मोहम्मद गौस साहब मुंतखब। जमीयतुल बिचकुंदा के वफद ने हाफिज मोहम्मद गौस साहब की सरपरस्ती में जुक्कल मंडल मुस्तखर पर जमीयतुल तेलंगाना का एक इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें जुक्कल मंडल के उलमा कराम ने शिरकत और इस इजलास में मौलाना मोहम्मद रिजवान कासमी साहब मदुए खुसूसी रियासती जमीयतुल तेलंगाना भी शिरकत की। इस इजलास में जमीयतुल हिंद तेलंगाना की मंडल सतह पर एक कमेटी के इंतखाबात अमल में आए। शुरा की मुतफ़िक़ा राय से जुक्कल मंडल की कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें जुक्कल मंडल के जमीयतुल सदर हाफिज मोहम्मद गौस साहब को मुंतखब किया गया। नायब सदर हाफिज मोहम्मद महबूब साहब, जनाब मोहम्मद अहमद साहब, जनाब मोहम्मद फरीद साहब, जनाब महबूब साहब, सीनियर सियासी कायद TRS सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल अजीम साहब, जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद समीर साहब, खाजिन मोहम्मद शफी साहब है। इजलास में मौलाना मोहम्मद रिजवान कासमी ने कहा कि जमीयतुल माहिन मुसलमानों की एक ताकतवर नुमाइंदा तंजीम है, इसको हर रियासत, जिले व मंडल सतह पर मुस्तहकिम करे। इस इजलास में मौलाना अब्दुल रहीम साहब, मौलाना मोहम्मद महबूब साहब, मौलाना
मोहम्मद रब्बानी साहब, मुफ्ती महबूब मोहम्मद साहब, हाफिज मोइन अकबर साहब, मौलाना इमरान रहमानी साहब, हाफिज मोहम्मद हजीफा, हाफिज अब्दुल समद साहब व दीगर मौजूद थे। जमीयतुल उलमा बिशकुंदा जो वफ्द यहाँ पर जुकल में मंडल जुकल के अंदर आया हुआ है और यहाँ एक मजलिस मुनक़िद हुई है, इसका मकसद ये है कि जमीयतुल उलमा का यहाँ पर क़याम हो और जमीयतुल उलमा की एक मजबूत मुस्तहकम बाड़ी बनाई जाए। उसके लिए आपको दावत दी गई और हमारी दावत पर आने वाले जनाब हाफिज़ समीर साहब जुकल, हाफिज़ गौस साहब एडवी, हाफिज़ महबूब साहब कल्लाली, ये भी जुकल मंडल से हैं, हाफिज़ अब्दुल अजीम साहब खंडे बलूर, ये भी जुकल मंडल से हैं, हमारे मौलाना साहब जुकल से हैं और इसी तरीके से फरीद भाई ये भी जुकल से हैं, जाफ़र साहब ये भी जुकल से हैं और समीर, आपका क्या नाम, सोहेल ये भी जुकल से हैं, अहमद साहब ये भी जुकल से हैं, महबूब साहब ये भी जुकल से हैं, मस्तान साहब ये भी जुकल से हैं। तो तकरीबन सरजमीन कामारेड्डी पर शहदायान रिसालत फिदायान खत्म नबुव्वत का अजीम शान फकीदुल मिसाल जलसियाम को कामयाब बनाने की अपील। मोहम्मद अब्दुल माजिद इंजीनियर खाजिन जमीयतुल उलमा ग्रेटर हैदराबाद से पोस्टर का रस्मी इजरा अंजाम दिया। मौलाना मंजूर मुज़ाहिरी की इत्तला के मुताबिक मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत कामारेड्डी के ज़ेरे एहतिमाम अज़ीम शान फ़कीदुल मिसाल जलसियाम बनवान तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत और हमारी जिम्मेदारियों के पोस्टर का रस्मी इजरा मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना अबरारुल हसन साहब रहमानी की निगरानी में मोहम्मद अब्दुल माजिद साहब इंजीनियर हैदराबाद ने अंजाम दिया और इस मौके से तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि ये जलसा ज़ेरे सरपरस्ती अमीर शरीयत हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान साहब दामद बरकातहुम, सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत ट्रस्ट हैदराबाद, वज़ीर सदारत अमीदुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ियासुद्दीन साहब रहमानी दामद बरकातहुम, सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा, 17 जमादिउल अव्वल 1443 1 जनवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा बमुकाम क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल सिरसिल्ला रोड कामारेड्डी इंशाअल्लाह मुनाक़िद होगा। जबकि जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुल्क के मुमताज व मायानास आलम दीन उस्ताद हदीसुल दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब बजनूरी दामद बरकातहुम, खलीफा हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दामद बरकातहुम, मुजाहिद खत्म नबुव्वत हजरत मौलाना मोहम्मद अबरारुल हसन रहमानी कासमी, सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत कामारेड्डी व हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद अकबर साहब कासमी दामद बरकातहुम निजामत के बसीरत अफरोज खिताबात होंगे। क़िरात कलाम पाक मौलाना हाफिज अब्दुल हादी साहब मदजिल्लाहुल आला हैदराबाद सुनाने की सादत हासिल करेंगे। नाते खातिमुल नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी शोहरत याफ्ता नातख़्वा बलबल हिंद मोहतरम मौलाना मुफ्ती तारिक जमील साहब कासमी खुनून यूपी अपनी खास आवाज में नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। निजामत मोहतरम मौलाना मुफ्ती इमरान खान साहब कासमी दामद बरकातहुम मबलग मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत ट्रस्ट कामारेड्डी अंजाम देंगे। उलमा कराम के बसीरत अफरोज खिताबात से इस्तिफादे के लिए आशिक़ाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसीर तादाद में शिरकत की। हाफिज मोहम्मद यूसुफ अली भी अनवर नायब सदर जमीयतुल उलमा कामारेड्डी, मिर्जा हाफिज बेग रुकन बल्दी कामारेड्डी, मोहम्मद सलीमुद्दीन खायद टीआरएस अलहाज, सैयद अजमत अली जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा कामारेड्डी, जनाब माजिद साहब इंजीनियर हैदराबाद, मिर्जा हाफिज बेग साहब खायद टीआरएस, मोहम्मद अबादुल्ला साहब, मोहम्मद अनवर शरीफ साहब, मोहम्मद मिनहाज साहब फर्जन, जनाब माजिद साहब इंजीनियर हैदराबाद, मोहम्मद रफीउद्दीन साहब, जनाब नसीरुद्दीन साहब के अलावा दीगर अहबाब ने पुरखुलूस गुजारिश खदाम व ट्रस्टियान मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट कामारेड्डी 9866505757 9848218474। एरगटला मंडल के तमाम ग्राम पंचायत दफ्तर में मुकामी सरपंच जी लावनिया गंगाधर के पद्मा सागर व दीगर ने घर घर का दौरा करते हुए मुकामी अवाम को कोविड टीका अंदाजी से मुतालिक शकों को शुबात को दूर करके टीका दिलवाया।
रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी के अहकामात के मुताबिक इरगटला मंडल के तमाम ग्राम पंचायत दफ्तर में मुकामी सरपंच लावण्या गंगाधर, कटकम, पद्मा सागर, मंजुला, बालाजी गौड़, राधा गंगाधाम व दीगर ने घर घर दौरा करते हुए मुकामी अवाम व दुकानों के मालिकान और मुलाजमीन से बात करते हुए कोविड वबा से महफूज रहने के लिए टीका अंदाजी पर जोर दिया और अवाम से मालूमात हासिल करते हुए इन्हें टीका दिलवाने के अलावा कोरोना वायरस की जदीद शक्ल ओमिक्रॉन से हिफाजती इक़दाम करने के लिए अलर्ट कर दिया गया। इसके पेश नजर मास्क के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ शोर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हुए मौज़े में मुक़ीम अवाम को कोरोना वैक्सीनेशन की 2 खुराक लेने का मशवरा दिया और अपने हाथों को साफ रखने के साथ साथ जिस्मानी फासला बनाए रखने का भी मशवरा दिया और अवाम को रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कोविड-19 उसूल व ज़ाबित पर मुकम्मल तौर पर अमलावरी करने का इजहार किया। पीसीसी प्रचार कमेटी सदर मधु गौड़ याशी की आज सालगिरह तकरीब के पेश नजर कांग्रेस पार्टी कायद स्वामी गौड़ के जेर निगरानी में केक कट करते हुए मिठाइयों की तकसीम अमल में लाई। जिले निजामाबाद के डिवीजन नंबर 41 सुभाष नगर में कांग्रेस पार्टी कायद स्वामी गौड़ के जेर निगरानी में आज पीसीसी प्रचार कमेटी सदर मधु याशी गौड़ की सालगिरह तकरीब के पेश नजर केक कट करते हुए मिठाइयों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर कायद ताहिर बिन हमदान ने कहा कि मधु याशी गौड़ मुस्तकबिल में मस्जिद आला ओहदे पर फायज होने की ख्वाहिश करते हुए कांग्रेस के दौर इख्तिदार में इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में सिटी कांग्रेस सदर वेनु, कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन दियाकर गौड़, विपुल गौड़, विकी यादव व दीगर ने शिरकत की। వారి జన్మదినాన్ని ఘనంగా జరుపుకున్న సందర్భంగా మేమందరం ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం। గౌరవనీయులు మధుగౌడ్ యాష్కి గారు ప్రజా సమస్యల పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల గత 20 సంవత్సరాలుగా చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తున్నటువంటి సందర్భం లోపల ఆయన ఇలాంటి జన్మదినాలు ఇంకా ఎన్నో జరుపుకోవాలని कांग्रेस दौरे हुकूमत व साबिक एमपी व रियासती कांग्रेस प्रचार कमेटी सदर मधु गौड़ याशी की मियाद में ही शहर निजामाबाद को मिली असल तरक्की। प्रचार कमेटी सदर जावेद अकरम, इन्होंने रियासती प्रचार कमेटी सदर मधु गौड़ याशी की यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब में किया एहतमाम व की शिरकत। आज साबिक एमपी व रियासती कांग्रेस प्रचार कमेटी मधु गौड़ याशी की यौम पैदाइश के मौके पर जिले प्रचार कमेटी सदर जावेद अकरम की क़ियादत में मुख्तलिफ फलाही व मजहबी तकारीब का एहतमाम किया गया, जिसके तहत मशहूर मारूफ दरगाह शरीफ हजरत सैयद कमाल शाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह पर इनकी दराजी उम्र व कामयाबी के लिए दुआएं की गई। इसी तरह डिवीजन नंबर 38 में जावेद अकरम व कांग्रेसी कायद मोहम्मद वाहिद की जानिब से हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कई डॉक्टर्स ने शिरकत करते हुए मरीजों की मुफ्त तशखीस करते हुए इन्हें अद्वियात फ्राहम किए। इसी तरह डिवीजन में केक कट करते हुए इनकी यौम पैदाइश के जश्न को मनाया गया। इस मौके पर इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि साबिक एमपी मधु गौड़ याशी ने अपनी मियाद के दौरान करीमनगर ता पेदापल्ली रेलवे लाइन को मंजूर करवाया और कामों का आगाज किया। इसी तरह शहर में पासपोर्ट ऑफिस का क़याम अमल में लाया। मुस्लिम खवातीन की फनी तालीमी महारत के लिए बैतुल माल को फंड से फराहम किया। इसी तरह मुख्तलिफ अहम खिदमात अंजाम दी और दहली में भी एक नुमाया मुकाम हासिल करते हुए जिले के कई अहम मसाइल को हल किया। इस मौके पर इनके हमरा शहरी कांग्रेसी सदर केशव वेनु, कांग्रेसी कायदीन ताहिर बिन हमदान, उबैद बिन हमदान, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रब्बानी व दीगर मौजूद थे। हमारे हरदिल अजीज कायद आली जनाब मधु गौड़ याशी साहब का यौम पैदाइश सालगिरह मनाया जा रहा है, जिसमें मधु गौड़ याशी साहब निज़ामाबाद ज़िले में 10 साल एमपी रह चुके हैं। उनके 10 साल एमपी रहने के बाद निज़ामाबाद ज़िले की आवाम उनको एमपी बनाने के बाद 2004 से 2014 तक वो एमपी रहे थे। उस वक्त कांग्रेस हुकूमत डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे और हमारे निज़ामाबाद के कई ऐसे बड़े कायदीन उनकी करीमनगर से पेद्दापल्ली से निज़ामाबाद को जो ट्रेन जो आज आ रही है, ये कारनामा कांग्रेस का है और मधु गौड़ याशी साहब का और मधु गौड़ याशी साहब की तमाम टीम का कारनामा है। तो वो पासपोर्ट ऑफिस निज़ामाबाद में लेकर आएंगे। तो मधु गौड़ याशी साहब का दूसरा कारनामा है निज़ामाबाद को पासपोर्ट ऑफिस लेकर आए। तमाम लीडर्स मिलकर मधु गौड़ याशी साहब के पास नुमाइंदगी किए। तो मधु गौड़ याशी साहब ने एमपी रहते हुए बैतुल माल को भी लाखों रुपए का फंड बैतुल माल को दिया। यही कारनामा मधु गौड़ याशी साहब का जो तेलंगाना यूनिवर्सिटी लेकर आए, ये मधु गौड़ याशी साहब एमपी रहने के बाद ही तेलंगाना यूनिवर्सिटी आई। तो मैं
आज यहाँ पर मधुगौड़ यास्की साहब का सालगिरह मनाने के मौके पर, उनके जन्मदिन के मौके पर यहाँ हमारे बस्ती में हेल्थ कैंप रखा गया है। हेल्थ कैंप में गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल भैंसी में हुकूमत तेलंगाना की तमाम तर सहूलतों के बाद भी मरीजों को दुश्वारियां। सरकारी तिब्बी अमले की जानिब से मरीजों को हरासा करते हुए रिश्वत के तौर पर रुपयों की मांग की जा रही है। एक मरीज के रिश्तेदार ने शिकायत करते हुए कहा कि मरीजा के ऑपरेशन के बाद व्हील चेयर पर ले जाने के लिए 500 रुपए तलब किए गए। एक और मरीज ने ऑपरेशन के बाद टांके खोलने के लिए 100 रुपए तलब किए गए। इसके अलावा दीगर टेस्टों के लिए वो स्कैनिंग के लिए बाहर खानगी लैब को भेजा जा रहा है। आला ओहदेदारान बार बार अवाम से अपील करते हैं कि सरकारी दवाखाने में तमाम तर सहूलतें मौजूद है और इस्तीफादे की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन तिब्बी अमले का बर्ताव मरीजों के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ को जानिब तवज्जो दिलवाई और एक तफसीली तहरीरी याददाश्त भी हवाले। मज़कूरा सहाफियों ने ट्विटर पर जिले कलेक्टर फारूकी को भी भैंसा सरकारी दवाखाने के अमले की रिश्वतखोरी, लापरवाही और कोताहियों से वाकिफ करवाया, जिसके बाद जिले कलेक्टर ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो इस मामले को संजीदगी से गौर करते हुए सख्त कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। वाज़ेह है कि भैंसा सरकारी दवाखाने में पिछले 2 माह कबल भी इस तरह की लापरवाही और मरीजों से रुपये बटोर कर गरीब अवाम को हरासा किया जा रहा था, जिसकी इत्तला पाकर मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिये भैंसा व जिला कलेक्टर निर्मल अली फारूक ने सरकारी दवाखाने का दौरा किया और तिब्बी अमले के साथ हंगामी इजलास तलब करते हुए सख्त वार्निंग भी दी थी। आला ओहदेदारान की मुसलसल कड़ी नजर के बावजूद भी तिब्बी अमला अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, जो गरीब अवाम की मजबूरियों का फायदा उठाकर अपनी जेब गरम करें। लिहाजा जिले इंतजामिया को रिश्वतखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि फिर कभी इस तरह की हरकत का इरादा ना हो सके। मैं सुबह फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के लिए आया था, ट्यूबेक्टमी के लिए। तो मेरे पास एक अपना बच्चा था छोटा, मेरा औरत को ऑपरेशन के लिए ले गए। तो अभी वो मैडम बोलने लगी कि वो सूदीदार नहीं है बोल के, तो वो पैसे गाड़ा का पैसे होता तो कुछ तो भी देना पड़ता बोले। तो मेरा बच्चा बहुत रो रहा था, जब मैं मेरा जेब से निकाल के 500 रुपये दे दिया तो मेरा बच्चा बहुत रोने लगा। मेरा औरत भी ऑपरेशन के बाद निकल गए बाहर ऑपरेशन थिएटर से। मैं लेके अपना रूम में इधर दिख रहे आ गए। आदमी है सर, हम बहुत दिन से आदमी है। आप मजदूरी करके खाने वाले बच्चे पालना कैसा करके हम ऑपरेशन में आए थे सुबह में, और गाड़ी पे बंडी धकेल के लाता रहा। वो भाई 500 रुपया मंगी जब में से निकाल के 500 रुपया दी भाई थी। वो भाई लेने लगा जबान दे दिया, उसको दिया कि किसको कॉल लिए कि फिर 500 रुपया मांग के मेरा बच्चा है। वो बच्चा बोला दिहाड़ी 500 रुपया बोला। जब मेरे साथ का बच्चा उन्हें बोला 500 रुपया मांगे, क्या मालूम सर उन्हें मांगे जब हमको देना पड़ता। हम गरीब आदमी है, जीने को है तो मारने के लगे तो हम क्या करेंगे? पूरा कोई तो बात है ना। प्राइवेट स्कूल्स में इंतजामिया की जानिब से मनमानी फीस की वसूली के लिए हरासानी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। पिछले साल लॉकडाउन से औलियाए तुलबा तालीमी इदारों की फीस अदा करने से कासिर थे। जारिया साल सितंबर में तालीमी इदारे जात की कुशादगी के साथ ही प्राइवेट स्कूल्स इंतजामिया की जानिब से औलियाए तुलबा को पूरे साल की फीस की अदायगी के लिए मजबूर किया जा रहा है। ज़िमन में हुकूमत की जानिब से एक जियो नंबर जारी किया गया, जिसके तहत तालीमी इदारों को सिर्फ ट्यूशन फीस की वसूली की इजाजत दी गई है, लेकिन आए दिन प्राइवेट स्कूल इंतजामिया की जानिब से मनमानी फीस की वसूली के लिए हरासा किया जा रहा है। औलियाए तुलबा ने अपने बेचैनी जाहिर करते हुए अलायंस एजुकेशनल एंड कैरियर गाइडेंस एंड वेलफेयर सोसाइटी की तवज्जो इस जानिब मजबूर करवाई, जिसके साथ ही अलायंस एजुकेशनल एंड कैरियर गाइडेंस एंड वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारों ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद से रब्त पैदा करते हुए स्कूल इंतजामिया की हरासानी से वाकिफ करवाया, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने प्राइवेट स्कूल इंतजामिया को इस सिलसिले में अहकामात जारी करने का तयक़ुन दिया और साथ ही तमाम प्राइवेट स्कूल्स के लिए ट्यूशन फीस मुकर्रर करने का तयक़ुन दिया। खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई करने का भी ऐलान किया और हुकूमती अहकामात की पाबजाई करने की स्कूल इंतजामिया से ख्वाहिश की। अभी सेवन चल रहे सब तकरीबन स्कूल्स में ये लोग लोग दे रहे, गरीब लोग रो रहे, उसके बावजूद भी कोई ये लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। जाओ फीस बनो, ट्यूशन फीस है ना सर, ट्यूशन फीस की मैं अभी आपके सामने ग्रुप में मैसेज आया प्राइवेट स्कूल को, ओके।
या फिर हमारा अकाउंटेंट भी डाल दो उसमें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्कल बेस्ट ऑफिसर्स की 1226 जायदादों पर तकर्रुरात। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कल बेस्ट ऑफिसर CBO की मखलूआ 1226 जायदादों पर भर्ती के लिए इलामिया जारी करते हुए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की है। दरख्वास्त के इत्खाल का सिलसिला शुरू हो चुका है और 29 दिसंबर आखिरी तारीख है। तालीमी काबिलियत किसी भी मुस्लिमा यूनिवर्सिटी से किसी भी शोबे में बैचलर डिग्री या मरकजी हुकूमत से तस्लीम शुदा मुमासिल कोर्स कामयाब हो। हद उम्र अकल तरीन उम्र 21 साल और अजीम तरीन उम्र 30 साल है। SC ST के लिए 5 साल की रियायत दी जाएगी और BC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की रियायत दी जाएगी। जिस्मानी माजूरीन SC ST के लिए 15 साल की रियायत दी जाएगी। जिस्मानी माजूरीन OBC के लिए 13 साल की रियायत दी जाएगी, जबकि जिस्मानी माजूरीन को 10 साल की रियायत दी जाएगी। एक्सी सर्विसमैन के लिए 5 साल की रियायत दी जाएगी। पे स्केल 63,840 रुपये होगा। इंतखाब का तरीक़ाकार ऑनलाइन तहरीरी इम्तिहान, स्क्रीनिंग और इंटरव्यू फीस जनरल OBC उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये फीस मुकर्रर है। SC ST SWD उम्मीदवारों को फीस की अदायगी से मुस्तस्ना रखा गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए SBI की सरकारी वेबसाइट पर मुलाहिजा करें। अवाम कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन से न घबराए बल्कि एहतियाती इक़दामात पर अमलावरी करते हुए कोरोना से निजात हासिल करने का तेलंगाना महकमे सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव ने किया इजहार। तेलंगाना सेहत आमे के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना वायरस की नई वबा ओमिक्रॉन से न घबराए बल्कि एहतियात बरते। एहतियात ही इसका बेहतर इलाज है। अवाम कोरोना वायरस की वबा से निजात हासिल करने के लिए पहले मरहले के तौर पर मास्क का इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंस फासले को बरकरार रखे और हर थोड़ी देर बाद हाथों को साफ धोए और घर में सैनिटाइजर के इस्तेमाल को भी लाजिम करार देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से इस ओमिक्रॉन से निमटने के लिए जंगी खतूत पर इक़दामात किए जा रहे हैं। अवाम को चाहिए कि वो हुकूमत के साथ अपने ताउन को बरकरार रखे और सबसे पहले घर से निकलते वक्त चेहरे पर मास्क को जरूर लगाए, सोशल डिस्टेंस को भी बरकरार रखे, गैर जरूरी घर के बाहर ना निकले। एहतियाती सबसे बड़ा इलाज है। 12 साल उम्र के बच्चों को भी उम्रा करने की इजाजत। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रे ने ऐलान किया है कि 12 साल या इससे ज्यादा उम्र के गैर मुल्की आज़मीन को ममलिकत में दाखिल होने और उम्रा करने की इजाज़त होगी। वजारत हज व उम्रा ने सिर्फ 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के गैर मुल्की आज़मीन को हज की इजाज़त देने के अपने पहले फैसले को वापस ले लिया है और 12 साल तक के बच्चों को उम्रे की इजाज़त देते हुए नई हिदायत जारी की है। नई हिदायत के मुताबिक ममलिकत के तमाम शहरियों और रिहायशियों के साथ साथ खलीज टाउन काउंसिल GCC रियासतों के शहरी और 12 साल या इससे ज्यादा उम्र के गैर मुल्की ज़ायरीन को मस्जिद हरम में उम्रा नमाज अदा करने की इजाजत मिल जाएगी। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में दाखिले की इजाजत दी है। 12 साल और इससे ज्यादा उम्र के गैर मुल्की जो मुख्तलिफ किस्म के वीजों के तहत आते ही इजाजतनामा हासिल करने के लिए तवक्कल नायब पर दरख्वास्त देना होगा, जिसमें इन्हें अपनी सेहत से मुतालिक मालूमात फराहम करना होगा। वजारत ने GCC रियासतों और दुनिया भर के दीगर ममालिक से आने वाले आज़मीन के तरीक़ेकार की भी वजाहत की। GCC के शहरियों के हवाले से इन्हें ममलिकत में दाखिल होने से पहले मुक़ीम प्लेटफॉर्म पर अपनी वैक्सीनेशन हैसियत का सबूत रजिस्टर करना होगा। इन्हें ममलिकत में आमद के बाद तवक्कलना और एतमन्ना पर अपनी दरख्वास्तों को इंदराज करना होगा। सिटी कांग्रेस कमेटी सदर केशव वेणु व कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद ताहिर बिन हमदान व जिले के प्रचार कमेटी के सदर जावेद अकरम की क़ियादत में तेलंगाना प्रचार कमेटी सदर मधु गौड़ याशी की सालगिरह तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया गया। तेलंगाना की साबिका पार्लियामेंट मेंबर व प्रचार कमेटी सदर मधु याशी गौड़ की यौम पैदाइश तकरीब के पेश नजर सिटी कांग्रेस कमेटी सदर केशव वेणु, कांग्रेस के सीनियर कायद ताहिर बिन हमदान व जिले के प्रचार कमेटी सदर जावेद अकरम की क़ियादत में सालगिरह तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाया गया। पहले मरहले के तौर पर कंटेश्वर में वाक़ नीला कंटेश्वर स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। वो बात इन्होंने BC वेलफेयर कमेटी हॉस्टल में जेर तालीम
तालीम 100 तलबा को सर्दी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ब्लैंकेट की फ्राहमी अमल में लाई गई। वो इसी तरह से चंद्रशेखर कॉलोनी में स्वामी गॉड के ज़ेरे निगरानी में हनुमान मंदिर खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए इनकी दराजी उम्र के लिए दुआएं की गई। इसके बाद स्नेहा सोसाइटी में मौजूद माजूद तलबा के दरमियान मधु याशकी गॉड की सालगिरह तकरीब को मनाते हुए इन तमाम तलबा को बिस्किट व ड्राइंग शेड हवाले किया गया। इस तरह से डिवीजन नंबर 38 में डिवीजन सदर वहीद के ज़ेरे निगरानी में दुब्बा कॉलोनी में हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई गई। और इसके अलावा माइनॉरिटी कायद उबैद बिन हमदान के ज़ेरे निगरानी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज मरीजों को फ्रूट की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानला मोहन रेड्डी, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, दियाकर गौड, जावेद अकरम, डॉक्टर जितेश, विपुल गौड, विक्की यादव, वेणुराज, केशव महज व दीगर ने शिरकत की। ఉదయము స్థానిక నీలకంఠేశ్వర ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి అటు నుంచి టీసీ హాస్టల్లో సుమారు 100 మంది విద్యార్థులకు చలికాలం సందర్భంగా వారికి నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్ష హోదాలో మేము అక్కడ 100 మంది విద్యార్థులకు బ్లాంకెట్స్ పంపిణీ చేయడం జరిగింది। అటు నుండి స్థానిక చంద్రశేఖర్ కాలనీలో స్వామి గౌడ్ గారి ఆధ్వర్యంలో 100 మంది పేదలకు అల్పాహారం పెట్టి వారికి మధ్యలో మధు యాష్కి గౌడ్ గారి జన్మదిన సందర్భంగా కేక్ కట్ చేసి వారితో ఆయన జన్మదినాన్ని पले प्रकृति जंगलात के तहत मौजे को सरसब्ज और शादाब बनाने का कामारेड्डी कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने दौरा करते हुए सदाशिव नगर मंडल भूमपल्ली देहात में वाक़े अंबरेश्वरी पहाड़ पर मौजूद पले प्रकृति जंगलात का जायजा लेते हुए तमाम पौधों को एक कतार में रखते हुए नर्सरी में जाम, नींबू, आम के पौधों अफजाइश करने की जिम्मेदार ओहदेदारान को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ राजवीर, सरपंच ललिता पाई, सेक्रेटरी वीरेशम व ओहदेदारान ने शिरकत की। अपनी सहाफत के जरिए कई मजलूमों को इंसाफ दिलाने वाले, उर्दू के जरिए कई बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने वाले अजीम कायद सहाफी व चीफ एडिटर रहनुमाए दक्कन व चेयरमैन इंडोरा ब्लैक मरहूम जनाब सैयद वक़ारुद्दीन साहब की ताज़ियती इजलास का भीमगल में इनेकाद। जनाब सैयद वक़ारुद्दीन साहब चीफ एडिटर रोजनामा रहनुमाए दक्कन व चेयरमैन इंडोरा ब्लैक की मिल्लत पर एक ताज़ियती इजलास का बाबापुर कम्युनिटी हॉल में इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब एम ए सलीम साहब स्टेट डायरेक्टर RTI और साबिक़ा सेशन जज कामारेड्डी और जनाब उस्मान साहब एडिटर फिक्र जमूर, जनाब मोहम्मद अब्दुल मोइस जिले परिषद कॉप्शन मेंबर निजामाबाद, जनाब ताहिर हुसैन साहब कायद TRS, जनाब अजमतुल्लाह साहब कॉप्शन मेंबर म्युनिसिपल भीमगल, जनाब अतीक साहब सरपंच बाबापुर, जनाब मोहम्मद जावेद साहब सेक्रेटरी जमीयतुल्मा और जनाब अब्दुल वाहिद साहब अमीर मुकामी जमात इस्लामी साबिक़ा सदर अंजुमन भीमगल ने शिरकत करते हुए वक़ारुद्दीन साहब को इनकी खिदमत का तस्करा करते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस जलसे की कार्रवाई मोहम्मद अब्दुल मुसव्विर नायब सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने चलाई। इन्होंने जनाब वक़ारुद्दीन साहब की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इस मौके पर जनाब ताहिर हुसैन साहब कायद TRS ने खिताब करते हुए कहा कि जनाब सैयद वक़ारुद्दीन साहब एक बेलूस कायद थे और फलस्तीन के काज के लिए इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। आलम अरब से इनके ताल्लुकात दोस्ताना थे। इन्हें कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इन्हें सियारा फलस्तीन और दीगर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। बातअज़्ज़र जिले परिषद कॉप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस ने खिताब करते हुए कहा कि वक़ारुद्दीन साहब जैसी शख्सियत इंतकाल उम्मत मुसलिमा का बहुत बड़ा खसारा है और बेबाक सहाफ़ी नहीं बल्कि एक बेलूस कायद हैदराबाद रुकन एक अजीम सपोर्ट से महरूम हो गई। बातअज़्ज़र जनाब उस्मान साहब एडिटर फिक्र जमूर ने अपने खिताब में जनाब वक़ारुद्दीन साहब की शख्सियत पर रोशनी डाली और इनकी वालिद मोहतरम से जनाब वक़ारुद्दीन के ताल्लुकात का तस्करा किया। इसके बाद जनाब असलम ने रहबर दक्कन से रहनुमाए दक्कन तक सफर की रवादार बयान की। इस मौके पर जनाब सलीम साहब RTI स्टेट डायरेक्टर और जनाब अब्दुल वहीद साहब अमीर मुकामी सेक्रेटरी जमीयतुल्मा ने भी खिताब किया। इस प्रोग्राम की कार्रवाई अब्दुल मुसव्विर नायब सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट ने चलाई। हाफिज रियाज अहमद साहब की तिलावत कलाम पाक से आगाज हुआ और जनाब हाफिज जलालुद्दीन साहब की दुआ पर ये प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर जनाब सैयद जफर अली नुमाइंदा सियासत, जनाब सादिक साहब नुमाइंदा मुंसिफ, मोहम्मद अकील साहब, साबिर हुसैन खादरी नुमाइंदा रहनुमाए दक्कन, मोहम्मद अब्दुल रफीक नुमाइंदा
मुंसिफ मोहम्मद शकील साहब, नुमाइंदा महवर मोहम्मद हामिद अली साहब, मॉर्निंग टाइम व दीगर मौजूद थे। उसका मालूम आता था पेपर का, दूसरे पेपर से अगर देखे तेलुगु पेपर से तो बहुत अलग अंदाज में रहता था। तो वो जो हिंदुस्तान के आवाम के लिए करे हैं काम, बहुत ही नेक और जो है ना बहुत अच्छा काम है। उससे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को, मुसलमान अपनी कौम को उत्साह पैदा हुआ। आज वो अपने बीच में नहीं है, लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत की जानिब से बैंकों को खानगी आने के खिलाफ 16 और 17 दिसंबर को मुलाजमीन की हड़ताल का ऐलान। गुरबा की फलाह के लिए सीएम केसीआर की जानिब से फराहम की जाने वाली फलाही स्कीमात की मुल्क की किसी भी रियासत में नजर नहीं। पीयूसी कमेटी चेयरमैन फार्मर मिले जीवन रेड्डी, इनसे मुख्तलिफ मंडल की अवाम ने मुलाकात करते हुए किया इजहार ख्याल। मुत्तहदा जिला MLC के कविता का एक और कारनामा, दुबई में जेर इलाज साई कुमार को वापस लाया अपने आबाई मुकाम। साबिक MP निजामाबाद व PCC प्रचार कमेटी सदर मधु गौड़ याशकी की यौम पैदाइश का जिले भर में जोश खरोश के साथ इनेकाद में मुख्तलिफ फलाही व समाजी काम दिए गए अंजाम। खानगी स्कूल्स में मनमानी फीस वसूली व कानून की खिलाफ वर्जी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर अफसर बेग की DEO से मुलाकात। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।